Good morning, my dear learners, students, spectators, audience. All of you are most welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agrawal, going to represent a very beautiful poem, a sonnet on his blindness, composed by a glorious poet, John Milton. On his blindness, John Milton feels pathetic, and about the poem, it is autobiographical in character, and it presents to us the pathetic condition of the poet who had lost his eyesight when he had hardly crossed half the span of his life. This sonnet is sublime in tone and expresses the poet's strong faith in the mercy of God. The poet believes that those persons who merely stand and wait and pray to God in silence are as good votaries of God as these angels who pass over land and sea in carrying out the orders of the Almighty God. So let me start in detail. Okay, my dear students. On his blindness is one of the finest sonnets in English literature. It is an autobiographical sonnet and brings before us the personality and character of the blind poet John Milton himself. It tells us that Milton had become blind when he had hardly covered the half of the span of his life. The state of his life after his period of his blindness was one of the grief and despair. The poet had lost all senses of cheerfulness in the world. The whole world appeared dark and gloomy to the poet. His life became a sad story of pathos with no bright landmark except the worship of God. However, on his blindness is one of the noblest poems in English language. It embodies Milton's faith in God's mercy. It is an autobiographical and subjective poem. Subjective या autobiographical poem वो होती है जिसमें कवि अपना खुद को प्रस्तुतिकरण करता है चरित्र के रूप में, कविता के अंदर से अपनी खुद की बात कहता है, आई माई मी यूज़ करता है, वो सब्जेक्टिव पोइम होती हैं। और ऑटोबायोग्राफिकल होती है जो अपनी स्व रचित स्व कथा अपने जीवन पर आधारित होती है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम कहलाती है। द पोइट स्पीक्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। हियर द पोइट लॉस्ट हिज आई साइट when he had hardly spent half of his life. The world to him appeared dark and gloomy. He thought that God's gift of poetry to him was lying useless with him. He thought that he would not be able to render any service to God by his poetic gift. In a state of desperation and sadness, he asks himself whether God requires work from a man who has been deprived of his eyesight. Patience tells the poet that God neither needs man's labor nor wants the return of his gifts given to man. Those persons who bear their sufferings without complaint are God's true servants. We must have unshakable faith in God's judgment. Moreover,
द सोनेट ब्रिंग्स बिफोर अस द रिलीजियस फेथ ऑफ द पोइट, धार्मिक विश्वास है कवि का जो उसको प्रस्तुत करता है, एंड हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द बेनिग्निटी ऑफ एंड मर्सी ऑफ गॉड, ईश्वर की दयालुता, बिनाइन से बना है बेनिग्निटी, बेनिग्नेंसी या बिनाइनेंसी, एंड मर्सी ऑफ गॉड, ईश्वर की दया और उदारता. इट एम्बॉडीज द reasoned faith of the poet in the greatness of mercy of God. He believes that those devotees, वो भक्त who merely stand and wait, do the Almighty as good service as angels who post over land and sea in executing the commands of Almighty God. जो लोग ईश्वर से कोई कंप्लेन नहीं करते बल्कि चुप करके उसके द्वारा दिए गए पुरस्कार या पनिश को चुप करके स्वीकार करते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं. बाइबल में भी ये बात कही गई है और भक्तों की कंपैरिजन की गई है भेड़ के साथ, क्योंकि भेड़ भी बहुत इनोसेंट होती है, भक्त भी बहुत सीधे साधे भोले वाले होते हैं. मिल्टन इज सेटिस्फाइड दैट by calmly submitting to the will of God in the spirit of resignation and praying to Him in silence, he would be able to enlist himself among the list of his devotees. This unshakable faith, ये अडिग विश्वास, unwavering faith in God of the poet is the chief characteristic of the pathetic cum religious sonnet, and it shows us the true greatness of Milton's noble soul. Actually, this sonnet is simple in utterance and sincere in the expression of thought. It is neither obscure nor clumsy. It is the cry of the poet's agonized heart and his humble prayer to God in distress. Here, Milton's own philosophy is being represented also in the text of the poem, which is inborn in the theme of the poem. Milton's poetry is marked by the spirit of Puritanism. Actually, John Milton was Puritanism, a Protestant. वो कैथोलिक नहीं थे. क्रिश्चियन धर्म दो भागों में विभक्त हुआ, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स. प्रोटेस्टेंट या प्योरिटनिज्म वो हैं प्योरिटनिस्ट जो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं. ये लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं. पीला रंग नॉलेज का, ज्ञान का, शुद्धता का प्रतीक होता है. और कैथोलिक्स वो हैं जो लॉर्ड क्राइस्ट में और उसकी वर्जिन मैरी मदर में विश्वास करते हैं, मूर्ति में विश्वास करते हैं. बट जॉन मिल्टन इज़ ए प्रोटेस्टेंट प्योरिटनिज्म. ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर में अडिग विश्वास रखते हैं. ही बिलीव्ड, वो मानता था दैट गॉड्स वेज आर जस्ट एंड वॉट एवर, ईश्वर के जो तरीके हैं वो बिल्कुल सही हैं. वो जो आज चाहे पनिश कर रहा है, चाहे कोई प्राइज़ दे रहा है, हम उसके लायक हैं क्योंकि वो परिस्थितियां ही हमें सही बनाएंगी, वो ही हमारे लिए सूटेबल हैं. ही डज नॉट request any worldly demand from God. We should remain contented with our lot and should not grumble in face of hardship. In order to please God, it is not necessary that we should do some work for Him. The best service to God consists in humble and patient acceptance of His will. They also serve who only stand and wait. वे भी ईश्वर के सबसे बड़े भक्त हैं जो केवल इंतज़ार करे रखते हैं और वर्तमान में किसी भी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं करते. इस प्रकार से द सोनेट लुक्स ए डाइडेक्टिक in the sense that it suggests how God can be best served and pleased. Moreover, we find a divine message to the suffering of mankind. It is a song of God. It is a boon, a celestial boon to the world that it is fast drifting towards utter moral ruin and spiritual decay. In the words of Dr. Mrs. Dobson,
Milton's greatest contribution to the bewildered and confused humanity is this perfect piece of highest divinity. It is a divine message to the suffering mankind, to the mankind that has all faith in his generosity and kindness. Such thoughts, such noble ideas, wedded to the sublimest bliss, and are not found anywhere in the entire range of English poetry, which is seen in the poetic form of John Milton. The poem is a sonnet. It is based on Petrarchan model, or you can say Italian sonnet, the same rhyming scheme adopted by John Milton. So later on it is called John Miltonic or Miltonic sonnet or Petrarchan sonnet or Italian sonnet. In the composing sonnet, Milton adopted Petrarchan style rather than Shakespearean. Only Shakespeare changed musical style, strain, rhyme, but he also adopted 14 line. But John Milton adopted ditto style rhyming scheme too. He brought back the sonnet to its original and strict type, the type which Petrarch had fixed. It consists of octave 8 lines and sestet 6 lines. Octave इंग्लिश का वर्ड है, संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अष्टक 8 लाइन वाला. सेस्टेट इंग्लिश वर्ड, संस्कृत में षष्टक 6 lines. His octave has run into the sestet. Its rhyming scheme is A, B, B, A, C, D, D, C, E, F, G, E, F, Z. Dear students, now let me read the text of the poem, and I will explain in Hindi because our students are of North India, Himachal, Punjab, Haryana, Rajasthan, especially Ganganagar, Hanumangarh, Bikaner district. So it is necessary to explain in Hindi. Okay, let us start. Let me read the text of the poem on his blindness. When I consider how my light is spent very beautifully, we feel pathetic. The poet, actually it looks that he is going to make a complaint, but in the end of the poem it looks that he does not make any complaint. When I consider how my light is spent, कवि विचार विमर्श करते हैं how light is spent. उसकी light means eyesight, उसकी नेत्र ज्योति कैसे समाप्त हुई. Era half my days, era मैंने before, half my days, मेरी उम्र का आधा पड़ाव भी नहीं हुआ, पहले मेरी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अंधे आदमी के लिए एक पग भी बहुत बड़ा लंबी चौड़ी दूरी होती है, तो पूरा विश्व मिल्टन साहब के लिए बहुत लंबा चौड़ा हो गया. तो वो लिख रहा है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉज विद मी यूजलेस. कवि महोदय अपनी कंप्लेन रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, एक पोइटिक टैलेंट है. टैलेंट मीन्स पोइटिक टैलेंट, काव्य लिखने की प्रतिभा है जॉन मिल्टन साहब में, विच इज़ डेथ टू हाइड. अब वो मौत छुपा देगी क्योंकि नेत्र ज्योति तो समाप्त हो गई. अब वो अपनी काव्य प्रतिभा का कैसे प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट नो. सो दैट्स वाई ही राइट्स, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉज विद मी यूजलेस. वो जो पोइटिक टैलेंट है आज कवि के साथ बेकार पड़ी है, क्योंकि कवि ईश्वर को कह रहा है ओह मेरे मास्टर, आगे कह रहा है तूने मुझे अंधा कर दिया. इसलिए पोइटिक टैलेंट है लॉज विद मी यूजलेस, मेरे साथ है तो सही लेकिन बेकार पड़ी है, तूने मुझे अंधा कर दिया. अब बिना आँखों के मैं काव्य का सृजन कैसे करूं, तेरी प्रशंसा में गीत कैसे लिखूं, मुझे नहीं पता. दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा तेरे प्रति झुकाव रखती है ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे मास्टर, टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरे निर्माता, तेरे लिए मेरे मालिक, तेरे लिए मेरी आत्मा बहुत
उत्साह प्रेम रखती है, पर मैं क्या करूं, तेरी प्रशंसा में गीत कैसे करूं। तूने मुझे काव्य लिखने की प्रतिभा तो दी, पर वो प्रतिभा किस काम की कि तूने मुझे अंधा कर दिया। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट और लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु उपरांत जब मैं ईश्वर के पास लौट के जाऊं, मेरी आत्मा ईश्वर के धाम पर लौट के जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ ईश्वर मुझे डांटे। फिर अपने आप से प्रश्न करता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर किसी को कोई भेंट देता है, कोई गिफ्ट देता है तो बदले में कुछ चाहता है क्या। जॉन मिल्टन साहब कहते हैं, हमने पहले चर्चा कर ली थी, ये सब्जेक्टिव पोइम है। सब्जेक्टिव पोइम वो होती है जिसमें राइटर, लेखक, कवि आई मई मी स्वयं की चर्चा करता है, ऑटोबायोग्राफी नेचर में है, जो आत्मकथा स्वयं की कथा के ऊपर आधारित है। तो यहाँ मिल्टन साहब लिखते हैं, आई फाउंडली आस्क, मैं बड़ा मूर्खतापूर्ण पूछ बैठता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन मेरा जो धैर्य है मुझे रोकता है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, कि ईश्वर से, मेरी आत्मा से और ज़्यादा ऐसे प्रश्न ना करो। और मेरी आत्मा है सून रिप्लाइज, वो मुझे बहुत जल्दी जवाब देती है, गॉड डथ नॉट नीड, इसका मतलब गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, और मनुष्य के जो कृत्य हैं या मनुष्य की जो कविताएं हैं या अन्य प्रकार के मनुष्य के कार्य जो वो ईश्वर की सेवा में लगाए, इन कार्यों की बिल्कुल भी ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती। और हिज आउन गिफ्ट्स, या जो ईश्वर किसी को गिफ्ट दे के भेजता है इस संसार में मनुष्य को, उस मानव से, मनुष्य से, उसे आकांक्षा ईश्वर नहीं रखता। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, वो बहुत ज़्यादा उसकी दास्ता, उसकी गुलामी, उसकी भक्ति सहन करते हैं, जो बियर सहन करते हैं, चुपचाप करके ईश्वर जो कुछ देता है उसको सहन करते हैं, कंप्लेन, ग्रजेस, शिकवे शिकायत नहीं करते। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी सच्ची सेवा आराधना करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, उसकी ईश्वर की जो स्थिति है राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स एंजल्स एंड आर्च एंजल, हज़ारों देवी देवता देवदूत उसकी एक बिडिंग स्पीड, एक मामूली से आदेश पर भी तैनात हो जाते हैं उसके आदेशों की पालना करने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और वो पोस्ट ओवर तैनात हो जाते हैं लैंड भूमि पे, एंड ओशन समुद्रों पे, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए ईश्वर के पालना करने, उसके आदेशों की अनुकंपा पालना करने में लग जाते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं जो उसका बहुत ही खामोशी के साथ में ईश्वर की सब चीज़, प्रदान की गई चीज़ों को स्वीकार करते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं करते और इंतज़ार करते हैं कि और ठीक होगा, जो ईश्वर दे रहा है ठीक है और जो देगा वो भी ठीक देगा। इस प्रकार से आत्मकथा प्रस्तुत की गई है, ऑटोबायोग्राफिकल नोट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सब्जेक्टिव पोइम है, आई माई मी की चर्चा की गई है, पेट्रार्कन मिल्टॉनिक सोनेट है। इसकी राइमिंग स्कीम तुकबंदी बता दी कि जब म्यूजिकल स्ट्रेन के साथ गाई जाती है तो प्रत्येक पंक्ति के पीछे, पहले लाइन के पीछे क्या है स्पेंट, दूसरी में वाइड, तीसरी में हाइड, चौथी में बेंट। तो पहला स्पेंट किससे म्यूजिकल राइम कर रहा है, म्यूजिकली राइम कर रहा है बेंट से, तो स्पेंट बेंट। वाइड किससे कर रहा है, हाइड से। प्रेजेंट फिर किससे कर रहा है, प्रिवेंट से। चाइल्ड किससे कर रहा है, डिनाइड से। तो ये हम राइमिंग स्कीम भी यहाँ देख सकते हैं। जॉन मिल्टन साहब एक बहुत ही अंग्रेजी साहित्य आकाश के उच्चतम सितारा है। इन्होंने अंधा होने पर महाकाव्य लिखा पैराडाइज लॉस्ट, और फिर एक और महाकाव्य लिखा पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज लॉस्ट स्वर्ग कैसे खो दिया, पैराडाइज रिगेंड स्वर्ग की पुनर्प्राप्ति कैसे होगी। एक्चुअली इनके अंधा होने पर क्या हुआ कि इनकी फोर्थ बीवी से 6 पुत्रियां जो उत्पन्न थी तो वो
पुत्रियाँ इनके लिए लिखने का काम करती थी और अंधे आदमी को पता नहीं होता कि कब उनकी ज़ुबान पर सरस्वती बैठ जाए। तो जैसे सरस्वती उनकी ज़ुबान पे बैठती थी तो वो दिन रात कुछ देखते नहीं थे, वो उन बेटियों को उठाते थे फटाफट से और ये कवि काव्य बोलते थे और वो लिखती जाती थी। बहुत परेशानियों में उनकी बेटियों ने शायद लिखा होगा, पर जो काव्य लिखा गया वो दुनिया में श्रेष्ठ अनुपम काव्य लिखा गया, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट स्वर्ग कैसे खो दिया, पैराडाइज रिगेन्ड मनुष्य वापस इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे प्राप्त करेगा। इस प्रकार से ये मैंने बहुत बड़े एक कवि को थोड़े से शब्दों में मेरी तुच्छ वाणी में प्रस्तुत करने की कोशिश की है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप समझ गए होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं आपको ये पोइम एक बार कहो तो एक्सप्लेन कर दूं और सारी कर ही दी है, मुझे पूर्ण विश्वास आप समझेंगे। एक बार सुन लेना। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट एंड दैट वर्ल्ड टैलेंट इज डेथ आई लॉस विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड डथ गॉड एग्जैक्ट डेवल लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, this also serve who only stand and wait। एक बार मैंने टेक्स्ट पूरा पढ़ दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल राइमिंग स्कीम है और प्रिय विद्यार्थियों आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।